Dear students, welcome you all in our new class in which we will study from today a new topic, a new biomolecule, lipids. We will discuss about the structure and function of lipids. Lipids are one of the four biomolecules found inside the cell, and it is very important component of biomembranes. Despite of playing a structural role in biomembrane, it also plays some important function inside the cell as well. It is in animals. Fats are the major energy reserves for the organism, so they are preferred over glycogen as a storage source of energy as well. So this class will focus on the various types of lipids found in living system, the structure of these various lipids and functions related to it. First of all, lipids are organic compounds. An organic compound means they show biological origin. Particularly carbon, hydrogen and oxygen containing organic compounds. They do not have nitrogen, sulfur or phosphorus found in other biomolecules like nucleic acid or protein, and even in case of carbohydrates. So carbon, hydrogen, oxygen, they are only carbon, hydrogen and oxygen containing organic compounds. They are relatively insoluble in water. As compared to carbohydrates and proteins, even in nucleic acid, they are very much soluble in water, but this particular biomolecule is relatively insoluble in water. They are soluble in organic solvents like alcohol and ether. So this is the peculiar characteristic of lipids which differs these biomolecules from the other biomolecules. It means if they are not soluble in water, it means they are hydrophobic in nature. And hydrophilic are which are soluble in water. Lipids, all lipids contains fatty acids as integral or important component. So fatty acid is an important component of all kinds of lipids. The major classes, or we can say, or the major types of lipid which are found in living organism are triacyl glycerol, also known as fat or oil, phospholipids,
Further, phospholipids are actually, they are found in membranes. So they are lipids found in biomembranes. It is further of two type. One is glycerophospholipid and the other one is sphingolipids. And third one is of steroids. It includes all type of sterols as well, like cholesterol found in animals, ergosterol, stigmasterols found in plants, various hormones in endocrine system or in animals are of steroid in nature. Steroids are actually cyclic lipids, while triacylglycerol phospholipids, they are actually found in linear form. Despite of all this, there are some lipids also which are found in living system, like waxes and cuteins. Wax and cuteins are generally they are found in plants, and waxes are actually made up of long chain of fatty acids with alcohol, while the triacylglycerols are made up of long chain of fatty acids with carboxylic acid at the end. This is the major difference between a triacylglycerol and waxes. So step by step, one by one, we will focus on all these different types of lipids. What is their structure, what is their important property, at which location inside the cell they are found, what is their main role or main function inside the cell. So before starting these lipids, let's have a look on overall function of lipids displayed inside the cell. So we are highlighting now some of the important or major roles, major functions performed by lipids in organism or in living system. First of all, they are the major components of all the biomembranes. Of all biomembranes of all organisms. जितने भी organism हैं, whether they belongs to they are microbes, or they belong to plant kingdom, or they belong to animal kingdom. The biomembranes means collectively all the membrane of the cell, which includes the plasma membrane as well as the organelle membrane. So it is the main component. आपने जब बायोमेम्ब्रेन स्टडी करी होगी तो एक इम्पॉर्टेंट मॉडल आपने स्टडी किया होगा जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल suggested that the biomembrane or the membranes are made up of lipid bilayer. This is a single layer of lipid molecule. This is lipid single layer, this is first, and this is another layer. So two layer of lipids are found. We will study in detail about the structure of lipids found in membranes. The membrane lipid possess a polar head group and two non-polar tail. The non-polar tail of the two layers faces each other, while the polar head groups are found in the opposite direction.
द पोलर हेड ग्रुप, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, द पोलर हेड ग्रुप ऑफ फेसेस टूवर्ड्स साइटोसोल एंड द अपोजिट पोलर हेड ग्रुप फेसेस टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्गेनल मेम्ब्रेन की बात करें तो एक हेड ग्रुप जो होगा, एक लेयर का हेड ग्रुप जो है वो उस ऑर्गेनल की ल्यूमन की तरफ होगा, और एक जो पोलर हेड ग्रुप है वो ऑर्गेनल के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ होगा। हालांकि लिपिड कंपोनेंट्स के अलावा यहाँ पर प्रोटीन कंपोनेंट्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स भी होते हैं, बट दे आर द मेजर सोर्सेस, दे आर द मेजर कंपोनेंट्स। और जो बायोमेम्ब्रेन्स हैं बेसिकली दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड टाइप ऑफ लिपिड्स। Second important role for which it is well known, they serves as a very good source of energy reserves. इनसाइड द सेल। जैसे कि हम बात करें एनिमल्स के अंदर, एडिपोस टिश्यूज are the tissues whose function is to store fat, and during starvation condition, जब शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज ख़त्म हो गया हो, ग्लूकोज की कमी है, तब फैट्स उस ऑर्गेनिज्म को और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर बीन ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड देन फैटी एसिड्स आर बीटा ऑक्सीडेशन के से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कई सारे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और फैटी एसिड्स एज कंपेयर टू ग्लूकोज दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज है मॉलिक्यूल है तो लगभग वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है, तो फैट जो है वो, या एक फैटी एसिड की जब हम बात करें तो वो लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें एनर्जी देता है। सो इट possesses मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द ग्लाइकोजन सोर्सेस। सो फैट्स आर ऑलवेज प्रिफर्ड एज अ रिजर्व फूड सब्सटेंसेज और मॉलिक्यूल्स। एडिपोज टिश्यूज भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू और एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू। जो वाइट एडिपोज टिश्यूज है एक्चुअली इट स्टोर both adipose tissues stores fat, but the motive of fats which are stored in these respective tissues is different. The fat which is stored in white adipose tissue produces ATP on beta oxidation. Means इन एडिपोज टिश्यूज़ के पास लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, एंडोजीनस लाइपेज एंजाइम होते हैं, वो फैट को पहले ब्रेक करेंगे। एक्चुअली फैट इज मेड अप ऑफ, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल and 3 fatty acid molecules. So first of all, the 3 fatty acid molecules have been broken, means the ester bond between the glycerol and the fatty acid bond is broken by lipase enzyme, and then individual fatty acid molecule undergoes beta oxidation, and the motive of beta oxidation is to produce ATP. It is also a part of cellular respiration, and this ATP serves as an energy source for the respective cell. But in case of brown adipose tissue, they also store fat, but here
यहाँ पर जो फैट स्टोर्ड है वह सेल्स को ऊर्जा नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, ये सीधा हीट एनर्जी या हीट जनरेट करेंगे। सो ये जो फैट बाउंड एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर रहता है उसका मेन मोटिव ये है कि एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को हीट जनरेट करना थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज थर्मोजेनेसिस। एंड इन पर्टिकुलर इट इज नॉन शिवरिंग। एक होता है हीट जनरेशन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें क्या है कि स्केलेटल मसल सेल्स शिवरिंग करती है और उससे भी थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है। बट जैसे कि ऐसे एनिमल्स और ख़ास करके बाउंड एडिपोज टिश्यूज़ एक तो कॉमन मिलेंगे आपको, दे आर फाउंड इन न्यू बॉर्न बेबीज़, क्योंकि उनको एकदम से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज़ उनमें जो काफ़ी मात्रा में बाउंड एडिपोज टिश्यू होता है और स्टार्टिंग में वो फैट फैट जो है वो हीट प्रोडक्शन में काम आता है। इस तरह से हाइबरनेटिंग एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स जो कि विंटर टॉर्पर अपन कहें, एक होता है समर टॉर्पर जिसको एस्टिवेशन कहते हैं, और एक होता है विंटर टॉर्पर जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर है या बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड कंडीशंस के अंदर है। तो उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम इज़ टू कोल्ड एंड टू मेंटेन देयर एंडोजीनस टेम्परेचर दे नीड to produce heat. So the heat energy is produced by burning of this fat, and the fat is stored in the brown adipose tissue. जैसे कि पोलर बियर हो गया, पोलर एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। ओवरऑल we can say that lipids are a very good source of energy reserves and they are always preferred over glycogen as energy reserve inside animal. They are also source for fat soluble vitamins like vitamin A, D, E and K. They are also source of production of prostaglandins, जो कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। इवन स्टीरॉयड हार्मोन दे आर आल्सो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। दे आल्सो कंट्रोल द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, दे कंट्रोल्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, बिकॉज जैसे हमने बात करी थी कि दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। सो कंपोनेंट होना एक अलग बात है, वो एक स्ट्रक्चरल रोल तो प्ले कर रहे हैं, जो कि एक जैसे मान लिया हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, you say this is a plasma membrane, this is the cell, it is the protoplasm, this is the cell surrounding medium, extracellular medium। अगर ये सिंगल सेल है तो बाहर का एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा, अगर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो भी एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। सो जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, उस एनवायरनमेंट डिफरेंस को मेंटेन करने का काम ही मेम्ब्रेन का है। बिकॉज मेम्ब्रेन क्या है कि सेलेक्टिवली ही कुछ कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने देती है। कुछ कंपाउंड्स मेम्ब्रेन के बाहर जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। सो दीज सेलेक्टेड सब्सटेंसेज विच आर अलाउड टू क्रॉस मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑल मेम्ब्रेन्स। सो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स एंड लिपिड्स। The hydrophobic nature of the lipid is very important in this membrane permeability, because कई सारे polar substances हैं।
ionic substances, they cannot freely cross the membrane because of the presence of non-polar lipid molecules. So membrane transport, or we can say the permeability of membrane depends upon the hydrophobic nature of lipid molecule present inside the membrane. But it doesn't mean that the entire membrane permeability depends only on lipids, because membrane contains lipids as their components. They also contain proteins as their components. They also contain carbohydrate in the form of oligosaccharides as their components. So all the components play important role in the permeability as well. So protein also play its important role, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो मान लिया कि लिपिड को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम आयंस हैं, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या अमीनो एसिड्स हैं, दे ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स. एटीपी है तो दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इनको मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते ही हैं. तो ऑब्वियसली जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो भी है वो प्रोटीन्स के थ्रू ही मेम्ब्रेन्स के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज हैं लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स, गैसेज हैं, दे आर फ्रीली परमेबल टू मेम्ब्रेन. इंपॉर्टेंट गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट हैव अ लुक कि एक बात चली गई है तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो विच कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, और वी कैन सी द मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल टू द substances, and for which substances membrane is not permeable. Let us have a look. Suppose consider a membrane which is entirely made up of lipid molecule. It is made up of only 100%. This membrane is made up of entirely lipids, 100% lipid. There is no protein component, there is no carbohydrate component in this case. अब हम देख सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन को फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं. हालांकि दिस टॉपिक ये जब कभी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे. ऑल गैसेस, चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्मली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि जब सर्कुलेट जब अपन बात करेंगे एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले जो हम गैस इनहेल करते हैं तो वहाँ पर लंग्स की जो सेल्स हैं वो लंग्स की सेल्स की जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर करना, और वहाँ से फिर आरबीसीज के अंदर एंटर करना, आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर डिफरेंट जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट की जाती है. तो गैसेस कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है. बस होना ये चाहिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर एक रीजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या रहेगा, जिस जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन है उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होती है. स्मॉल नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है. वाटर इज पोलर, वी कैन से इवन नॉन पोलर तो फैटी एसिड्स वगैरह हो जाएंगे, पर स्मॉल पोलर सब्सटेंसेस भी अलाउड है. वाटर है, अल्कोहल है, दे कैन क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. Substance of lipid origin like fatty acids, steroid, hormones, they can easily cross the membrane. So this 100% lipid membrane, we can say it's permeable to all such type of substances, but it is impermeable to all ions,
whether they are positive ions or they are negative ions, they cannot cross membrane. Polar molecules like glucose, amino acids, इनके लिए भी मेम्ब्रेन नॉन परमेबल है. और इवन जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये तो चार्ज भी हैं, इनके लिए भी मेम्ब्रेन इनपरमेबल है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये जो सब्सटेंसेस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ये भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो इनके लिए स्पेशली मेम्ब्रेन के अंदर अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो ये जो सब्सटेंसेस है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर पोलर इन नेचर. नॉन पोलर सब्सटेंस कैन इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द lipid molecules. Further, these membrane transport proteins can be categorized into 3 broad categories: ATP powered pumps, ion channels, and transporters. So membrane transport is important property of lipids. Again, lipids also play some important role in signaling as well, cell signaling. For example, consider a cell, particular cell, say it is an endocrine cell. Endocrine cell means a cell which synthesizes and produces a signal molecule, and that signal molecule is actually called as hormone. So many cells produces steroid hormones like glucocorticoids, progesterone, estrogen, progesterone, testosterone. These all are examples of steroid hormones, and these are synthesized by particular endocrine cell, and this signal hormone then travels and acts on a particular target cell, and the target cell produces an appropriate response. So this ligand molecule or this signal molecule can move inside because it can cross a membrane and produces a signal transduction pathway which leads to a particular cellular response. So this is what called as signaling. It can be called as, this hormone is acting as an intercellular signaling एजेंट और मॉलिक्यूल. सो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के अंदर खास करके ये एक तरह की क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग है. तो कई एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर भी स्टीरॉयड हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग. हालांकि जब ये अंदर एंटर कर जाते हैं, या इसके अलावा कई सारे ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो स्टीरॉयड नेचर के नहीं हैं, या प्रोटीन्स हो सकते हैं, या और किसी नेचर के हो, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड होते हैं और उसके बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर को, और सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे को इनिशिएट करते हैं. और सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर. और जब सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे इनिशिएट होता है, जैसे मान लिया, कंसिडर दिस इज सेल सरफेस रिसेप्टर, चाहे वो टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर हो या जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर. दिस इज द टारगेट सेल. सपोज से इट इज जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, और इसके ऊपर कोई लिगेंड मॉलिक्यूल दैट इज सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ. बाइंड होने के बाद क्या होगा, एक सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथ पे इनिशिएट होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट होते हैं. तो पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन के अंदर एक
लिपिड होती है जिसे कहते हैं PIP2, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट. इट प्रोड्यूसेस DAG, diacyl glycerol. It is actually a lipid molecule. Since diacyl glycerol is called as second messenger. And then this diacyl glycerol activates another sets of signaling molecule, जिसको हम सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे के अलग अलग कैस्केड कहेंगे अपन. और तो इसलिए ये मेरा कहना है मतलब ये है कि लिपिड का काम सिर्फ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मीन्स ट्रांसपोर्ट के अलावा भी और भी काम है, खास करके सिग्नलिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल. और एक वेरी गुड एग्जांपल है इसका, एक सबसे अच्छा उदाहरण है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, which is known as second messenger. First messenger is always ligand molecule. So जब ये अंदर सेल के अंदर सिग्नलिंग का काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है. ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है. सो दीज आर द सम important roles or functions performed by lipid molecules in लिविंग सिस्टम. अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो मेजर क्लास है लिपिड की उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और साथ में उनके फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ फैटी एसिड हम कह सकते हैं कि एक तरह का बेसिक कंपोनेंट है चाहे कोई सी भी टाइप का लिपिड हो. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वी कैन से लिपिड मॉलिक्यूल, fatty acids. Main component of all types of lipids. Now what are fatty acids? Fatty acids are made up of long chain of hydrocarbon. With carboxylic acid at their end. जैसे मान लिया एक हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स कार्बन हाइड्रोजन, ये चेन स्टार्ट हो रही है CH3 से, फिर CH2 हो सकता है n टाइम्स, मतलब कार्बन नंबर 10 भी हो सकता है, कार्बन नंबर 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 24 या 26 तक भी हो सकता है, और लास्ट में COOH. सो अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, and at end there is a carboxylic acid. So this is the basic structure of all type of fatty acid. In living system जनरली जो फैटी एसिड्स है वो इवन चेन होती है. इवन चेन में पर्टिकुलरली C10 से लेकर के अप टू C26 तक कॉमन है. मतलब कि इसमें कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ऑड नंबर की बहुत रेयर है. ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स जो है वो एक रेयर है. इवन जो नंबर अब इसमें भी आप देखेंगे तो C14, C16, C18 एंड C20 ये चार जो नंबर है कार्बन्स के, 14, 16, 18 या C18 टाइप की या C20 टाइप की या C14, C16 टाइप की फैटी एसिड सबसे ज़्यादा कॉमन है. नाउ द इम्पॉर्टेंट thing is that
or we can say a question arises, why the even number of carbons are found in fatty acids, or we can say even carbon number of fatty acids do actually exist in living system. But what is the main reason behind this? The reason is that the synthesis of fatty acid. जब भी हम fatty acid का synthesis स्टडी करेंगे, खास करके जिसे हम fatty acid synthesis की बात करते हैं, तो जब fatty acid synthesis की बात करेंगे तो हमेशा दो कार्बन एक साथ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। तो दो कार्बन, जैसे एसिटिल कोएंजाइम ए इज द प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस एंड एसिटिल कोएंजाइम ए इज एक्चुअली अ 2 कार्बन कंपाउंड. So this 2 कार्बन कंपाउंड acts as a building block of fatty acid. तो जो दो कार्बन आया तो फिर आप एक बार दो कार्बन आया, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड, देन कम्स द अनदर 2 कार्बन कंपाउंड, फिर रिएक्शन हुई और ये लिंक्ड हुए तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया. फिर आप से एक एसिटिल कोएंजाइम आया तो 6 कार्बन बन गया, फिर उसके बाद 8 कार्बन, 10 कार्बन. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स आर ऑफ इवन number of carbons. Now, fatty acids can be categorized into two different groups on the basis of presence of a single bond between 2 carbon or a double bond, that is saturated fatty acid or unsaturated fatty acid. In short form, we will describe it as SFA and unsaturated fatty acid. UFA. Saturated fatty acid means fatty acids having only single bond, and the fatty acids having double bonds between hydrocarbon chain CH2, CH2 and CH2. So these are the single bonds between the hydrocarbons, and there you can see the double bond between the hydrocarbons. So whenever double bond arises, it means that fatty acid is can be called as unsaturated fatty acid. And fatty acid which contains or which consists entirely of only single bond, it means it is a saturated fatty acids. Saturated fatty acids are more common. Common in the sense they can be easily synthesized in the animals. Well, plants can synthesize both type of fatty acid, whether it is saturated fatty acid or it is unsaturated fatty acid. But in case of animals can synthesize saturated fatty acid, but they are unable to synthesize, or they in very rare cases they can synthesize unsaturated fatty acid. So in case of animals, unsaturated fatty acid act as an essential nutrient. While the saturated fatty acid is non-essential for animals, because the animal body can synthesize saturated fatty acid by a process known as fatty acid synthesis. So in case of unsaturated fatty acid, it is essential for us. So this nutrient, this unsaturated fatty acid, is must, or it should be present in our diet. Now let us have some common example like C14. C14 means fatty acid having 14 number of carbons, fatty acid having 16 number of carbon. Myristic acid is a very good example. Palmitic acid C16, C18,
stearic acid, C20 arachidic acid. So these are the some common examples of saturated fatty acid. Now, both types of fatty acids are present in different kinds of lipid. For example, if it is a membrane lipid, say phospholipid. So in phospholipid, unsaturated fatty acid is also present, as well as saturated fatty acid is also present. But due to presence of these fatty acid, whether it is saturated or it is unsaturated, there is a different role. We can say, for example, unsaturated fatty acid, they contribute more to membrane fluidity, while saturated fatty acid contribute more to membrane rigidity. We will study this particular topic in detail in when we discuss about the fatty acids role, कि किस तरीके से ये membrane में पैक होते हैं और कैसे ये फ्लूइडिटी और रिजिडिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को. Further, unsaturated fatty acid can be again divided into two groups on the basis of the number of double bond present inside the molecule. If there is single double bond, only single double bond, then that unsaturated fatty acid can be called as mono unsaturated fatty acid, MUFA, MUFA. And multiple double bonds, more than one, means if double bonds are two, double bonds may be three, or double bond may be four. So multiple double bonds fatty acids are actually called as polyunsaturated fatty acid. In short form, it is called as PUFA. काफ़ी सारे जो ऑयल के जो कुकिंग ऑयल के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि इट इज़ अ PUFA रिच ऑयल, डॉक्टर एडवाइज टू यूज़ PUFA रिच ऑयल. क्यों इसको कहते हैं, उसका रीज़न भी हम देखेंगे यहाँ पर. लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑफ MUFA एंड PUFA. Oleic acid, for example, is a C16 carbon 16 compound, and it possesses only single double bond. It is MUFA, and this double bond is designated as delta 9. Delta 9 means the double bond is present between carbon number 9 and carbon number 10. Say it is carbon number 8, it is carbon number 7, it is carbon number 11. So double bond is present between carbon number 9 and 10. So delta means the double bond and 9 means the number of carbon atom at which the double bond is actually present. So oleic acid is simply represented as C16. C16 means it is 16 carbon long fatty acid, and delta 9 means a double bond between 9 and 10. One important thing is that double bond between fatty acid is always of cis conformation. This is cis conformation.
while the trans conformation is just like this, CH and then CH. The position, you can see the position of hydrogen or the position of carbon. Here the position of hydrogen and carbon is changed. They are in opposite direction. This conformation is called as trans conformation. But it has been found that only cis conformation actually exists in unsaturated fatty acid, whether it is a monounsaturated fatty acid or it is a polyunsaturated fatty acid. Another important property of double bond in unsaturated fatty acid is that, for example, this is a chain most of the saturated fatty acids, and saturated fatty acid contains only single bond. So single bonds are actually linear. There is no deviation inside the bond. But due to arise or due to presence of double bond, there is distortion in the हाइड्रोकार्बन चेन. आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के कारण इसके अंदर क्या है, एक बैंडिंग हो गई है जिसको किंक कहते हैं. एंड समथिंग अराउंड ये जो बैंड है 30 डिग्री के आसपास है. अगर ये सिंपली सैचुरेटेड फैटी एसिड होती तो यहाँ पर इस तरह की बैंडिंग ऑब्जर्व नहीं की जाती और या बैंडिंग नहीं होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड में. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड देयर इज सम डिस्टॉर्शन. और यही जो चीज़ है मेम्ब्रेन की इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रॉपर्टी को अलग करती है और इसके कारण मेम्ब्रेन पर भी असर पड़ता है. तो देखेंगे किस तरह से असर पड़ता है. बट दिस आर सम कॉमन और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. फर्दर देयर आर सम एग्जाम्पल, वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि लिनोलिक एसिड C18 is to delta 9 and delta 12. Poly means more than one double bond. Now linoleic acid is actually C18, 18 carbon long fatty acid. It possesses two double bonds and the position of double bond is between carbon number 9 and 10 and carbon number 12 and 13. Delta 12 means between 12 and 13 and delta 9 means double bond between 9 and 10th number of carbon. Linolenic acid, it is again C18, delta 9, delta 12 and delta 15. So linolenic acid is again an example of 18 carbon long fatty acid molecule having three double bonds, and the position of double bond is between carbon number 9 and 10, carbon number 12 and 13 and carbon number 15 and 16. Another example is arachidonic acid. It is C20 is to delta 5, delta 8, delta 11 and delta 14. Arachidonic acid, it is 20 carbon long fatty acid, contains 4 double bonds at position carbon number 5 and 6, at carbon number 8 and 9, and between carbon number 11 and 12 and between carbon number 14 and 16. Arachidonic acid is also precursor of as I mentioned earlier, important compound which is known as prostaglandin. It has multiple role inside the animal cells. So these are we have studied about saturated fatty acid, unsaturated fatty acid with
some selective examples. Now I want to point out the role played by the saturated fatty acid and unsaturated fatty acid in membrane lipids, and what is the effect of the relative proportion of saturated fatty acid or the relative proportion of unsaturated fatty acid inside the membrane. How the physical property of membrane is decided by the relative proportion of saturated fatty acid और unsaturated fatty acid. So मैं थोड़ा सा membranes के ऊपर फोकस करूँगा. जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, that is rigidity and fluidity. Well, as per the fluid mosaic model, membrane is quasi fluid in nature. Quasi fluid मतलब ये हुआ कि ना तो मेम्ब्रेन एकदम से रिजिड होती है और ना ही मेम्ब्रेन एकदम से पूरी तरह से फ्लूइड नेचर की होती है. थोड़ी सी सेमी सॉलिड टाइप अपन कह सकते हैं, हल्का सा, एकदम सॉलिड भी नहीं और एकदम फ्लूइड भी नहीं. सो दिस बैलेंस बिटवीन द फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय द टाइप ऑफ और द proportion of saturated fatty acid or the proportion of unsaturated fatty acid. So this proportion is very important. This balance is very important because on this particular balance, the physical property, particularly rigidity and fluidity, depends of the membrane. If the balance between the rigidity and fluidity is disturbed, it means the property of membrane is disturbed, and ultimately the function of the cell will be disturbed. So it is very important. Now, saturated fatty acid actually contributes to membrane rigidity. Rigidity means hardness. उसके अंदर कठोर जो कठोरता जो होगी membrane के अंदर, वो by virtue of the presence of saturated fatty acid in phospholipid. क्यों saturated fatty acid मेम्ब्रेन रिजिडिटी को कंट्रीब्यूट करती है, देखते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, दे आर पैक्ड very efficiently inside the membrane. जैसे कि आप जानते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फोलिपिड होती है, उसमें एक तो होता है पोलर हेड ग्रुप होता है, ठीक है, और उसके पास दो नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है, और ये दूसरी लेयर होगी बाइलेयर. तो एक तरफ तो साइटोसोल हो गया, मान लिया कि इधर साइटोप्लाज्मिक साइड हो गई और एक तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स साइड हो गई, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो. अब ये जो नॉन पोलर टेल जो है, एक्चुअली ये नॉन पोलर टेल क्या है, फैटी एसिड की बनी होती है. इट इज प्योरली मेड अप ऑफ फैटी एसिड. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन चेन
is undistorted. We can say it is flat in nature, it is plain in nature, it is, so there is no distortion. So इस कारण क्या है कि जब मेम्ब्रेन के अंदर जब ये फॉस्फोलिपिड पैक होती है तो बहुत आसानी से पैक होती है, क्योंकि जब फैटी एसिड के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं है तो बहुत ही क्लोज पास में ये फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे से पैक के पास में पैक हो रही है इन द अवेलेबल स्पेस, तो कम से कम स्पेस के अंदर भी आसानी से ये पैक हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं काफ़ी आसानी, बहुत ही एफिशिएंट वे में फैटी एसिड्स या फॉस्फोलिपिड्स इस मेम्ब्रेन के अंदर अवेलेबल है। अब इसके कारण क्या होगा कि इस एफिशिएंट पैकिंग के कारण क्या होगा कि जो इन दोनों, चूंकि फैटी एसिड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन है और नॉन पोलर नेचर की होती है, जब नॉन पोलर स्पीसीज मॉइटीज जब पास में आते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप होगा, या वी कैन से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। ये कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रही है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के अंदर। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ही होती है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा मजबूत होंगे, और वी कैन से द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज एक्चुअली, और साथ में चूंकि एक इंट्रैक्शन और होता है, क्योंकि दैट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वान डर वाल इंट्रैक्शंस। सो वान डर वाल इंट्रैक्शन मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में भी एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वान डर वाल फोर्स। So due to close packing of fatty acid, the close packing of phospholipids, the hydrophobic interaction as well as the van der Waals interactions are strong. They are strong enough. तो जब ये इंट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो एक तरह से देखा जाएगा कि इनके बीच में जो मूवमेंट्स हैं विद इन द लेयर, जैसे ये एक लेयर है और ये नीचे वाली लेयर है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं जो अपन कह सकते हैं लैटरल मूवमेंट्स, वह बहुत ही कम होंगे, वेरी लेस, और वी कैन से न के बराबर होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो अपन कहेंगे इट इज रिजिड इन नेचर। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग वान डर वाल इंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड, ड्यू टू undistorted nature of the hydrocarbon chain, they are packed efficiently and they are strong hydrophobic interaction and strong van der Waals interaction, and hence the lateral movements or flip-flop movements in the in both layers is negligible. जब न के बराबर होंगे तो अपन कहेंगे it is rigid in nature, और वी कैन से कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को थोड़ी कठोरता प्रदान कर रहा है, और इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेम्ब्रेन जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उससे ज़्यादा होगा। और ये जरूरी भी है कि अगर मेम्ब्रेन एकदम फ्लूइडिटी होगी तो कोई सा भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकता, थोड़ा बहुत रिजिडनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके बीच में डिस्टेंसेस ज़्यादा होंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कि अनवांटेड है सेल के लिए, तो अनवांटेड मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर सकता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अराइजेस? Unsaturated fatty acid actually contributes membrane fluidity. It contributes membrane rigidity, it contributes membrane fluidity. Why it contributes membrane fluidity? Because unsaturated fatty acid in phospholipids are packed less efficiently.
in the available space. Why they are packed less efficiently? Because of distortion in the hydrocarbon chain, कि उनकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, अब जैसे जो फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें क्या होता है कि एक तो हो गया पोलर हेड और दो हाइड्रोकार्बन चेन होती है। एक हाइड्रोकार्बन चेन तो हमेशा उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ही होगा, और दूसरा जो होगा जो सेंटर C2 कार्बन होता है वो उसमें अनसेचुरेशन हो सकता है। अनसेचुरेशन डिपेंड करता है, अगर मान लिया सिंगल डबल बॉन्ड है, मतलब डेल्टा 9 पे है, मान लिया कि सपोज ये एक ऑलिक एसिड है, उसके पास सिंगल डबल बॉन्ड है, मान लिया लिनोलेनिक एसिड है, उसके पास दो डबल बॉन्ड होंगे, तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन हो रहा है, फर्दर फिर वापस डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना डबल बॉन्ड है। तो डिस्टॉर्टेड जो फैटी एसिड होगा और या डिस्टॉर्टेड फैटी एसिड वाली जो फॉस्फोलिपिड होगी वो इतनी आसानी से पैक नहीं हो पाएगी जैसे कि ये फॉस्फोलिपिड हो रही थी। कौन सी? सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली फॉस्फोलिपिड हो रही थी। अब इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लिया ये फॉस्फोलिपिड ऐसी है जिसमें प्योरली सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब यहाँ पर एक फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड ऐसी है जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गई। अब इसके बाद अगला फॉस्फोलिपिड यहाँ पर होगा, फिर एक और आया, मान लिया कि इसमें भी डबल बॉन्ड्स हैं, ये और कुछ ज़्यादा हो तो और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, ये इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के कारण क्या है कि इन दो फैटी एसिड्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, अ लार्ज डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो इंट्रैक्शंस है, खास करके जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है या जो वांडरवॉल इंट्रैक्शन है, they are comparatively weaker now. These are weak interactions. तो जब interactions weak होंगे तो वो tightly packed नहीं हो पाएंगे, they are loosely packed. So when they are loosely packed, it means it behaves some sort, it contains some sort of fluidity. इसके अंदर थोड़ा सी लचलता रहेगी और आसानी से लेटरल मूवमेंट्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इनके बीच में हो सकते हैं। सो ये फ्लूइडिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और चूंकि फ्लूइडिटी ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जब मेम्ब्रेन में रहेगी तो उनके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो रहेगा एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ membranes having entirely made up of saturated fatty acid। और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी तरह से प्रभावित करती है अलग अलग टाइप की सेल्स की मेम्ब्रेन्स को, और जहाँ पर भी ये फंक्शन कर रही है। जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस एक टाइप का की हार्डनिंग है आर्टरियल वॉल की, जो आर्टरीज के अंदर जो एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, उनकी मेम्ब्रेन्स जो होती है, अगर उनकी हार्डनिंग का कारण क्या हो सकता है, ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, तो उस कारण हार्डनिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर काफ़ी सारी रुकावटें या दिक्कतें पैदा होगी। और अल्टीमेटली जब ब्लड फ्लो में रुकावटें पैदा होगी या ऑब्स्टिकल्स डेवलप होंगे तो हार्ट हैज़ टू टेक मोर प्रेशर, अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ द एनिमल, हाइपरटेंशन होगा। और हो सकता है अगर वो ब्लॉकेज या अगर बहुत ज़्यादा हार्डनिंग हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर रीजन तक ब्लड या टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाएगा। और मान लिया वो खुद पर्टिकुलर पार्ट हार्ट का ही, अगर हार्ट की मसल सेल्स को ही अगर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही तो इट मे लीड टू अटैक और इट मे लीड टू स्ट्रोक अगर ये ब्रेन सेल्स हैं। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस का भी एक कारण है हार्डनिंग ऑफ आर्टरियल वॉल जो होती है। और
इसलिए कहीं काफ़ी सारे डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि वी मस्ट हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनसाइड इन आवर डाइट, और हमें प्यूफा रिच ऑयल लेना चाहिए, क्योंकि जो एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और वो रिच अमाउंट में कहाँ मिलेगा, ऑयल्स के अंदर। तो वह ऑयल जिसमें रिच अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उन्हें उसको हमें अपटेक करना चाहिए, ताकि वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को या मेम्ब्रेन की जो रिजिडिटी है उसको बैलेंस कर सके। नाउ फैटी एसिड के बाद हम स्टडी करेंगे फैट के बारे में। ऑयल, बस फ़र्क ये है फैट और ऑयल के अंदर, केमिकली दे आर सेम, देयर इज फिजिकल डिफरेंस, फिजिकली दे आर डिफरेंट। फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल इज liquid at room temperature. And why it is liquid? Because oil contains more unsaturated fatty acid as compared to fat. Fat has more saturated fatty acid. So unsaturated fatty acid होने के कारण क्या है कि again the same thing, उनके अंदर fluidity ज़्यादा रहती है। And together both are called as TAG, that is triacyl glycerol. This is the most common type of lipid found in living system or organism. Type or most common class of lipid. This fat, or we can say oil or triacyl glycerol, is actually made up of glycerol and 3 fatty acid molecules. Triacyl glycerol is made up of 1 glycerol molecule together with 3 fatty acid molecules. Say this is a glycerol molecule, C1, C2 and C3, 3 carbon compound, and hydrocarb 3 fatty acids, that is C double bond O, OH. This is the carboxylic group. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1, then HO, C double bond O. This is the hydrocarbon chain. This is complete hydrocarbon chain, and this is at end it is carboxylic acid, HO, C double bond O, and this is third number of hydrocarbon chain or third number of fatty acid. जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो अगेन ऑलमोस्ट 3 molecules of water are liberated and an ester bond is been synthesized between the glycerol and the remaining 3 fatty acid molecules. So triacyl glycerol is also called as fatty acid esters of glycerol. So you can look in this picture, in this diagram, the 3 ester bond will be synthesized between 1 molecule of glycerol and the 3 molecules of fatty acids in this manner, CH2O, CHO, CH2O. This is the carboxylic carbon, and the hydrocarbon chain. So you can see how the structure of a triacyl glycerol.
So triacyl name is given to the 3 fatty acid molecules and a single glycerol. So this is a structure of a triacyl glycerol. Now, important thing is that what is the main role of fat or oil or triacyl glycerol. So I had mentioned in the starting of my class that fat is stored as reserve food in animals, and oil is a reserve food in case of plants, and fat is preferred over glycogen as रिजर्व फूड. हमेशा फैट को ही प्राथमिकता दी जाती है रिजर्व फूड, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर तो बहुत ही कम होते हैं, वो एक दिन में एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जबकि फैट स्टोर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये लंबे समय तक, कई दिनों तक उस जीव को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं. अब इसके भी कुछ कारण हैं क्यों फैट्स के पास ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है एज कंपेयर टू द ग्लाइकोजन. देखते हैं वो क्या कारण है. लेट अस सी द रीजंस बिहाइंड व्हाई फैट इज प्रेफर्ड एज अ रिजर्व फूड ओवर ग्लाइकोजन. अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जब ऑक्सीडेशन किया गया ग्लूकोज और फैट्स का, तो ग्लूकोज लगभग 4 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी देते हैं, और जबकि ये 9 कैलोरी पर ग्राम से एनर्जी देते हैं. तो इट मीन्स 1 ग्राम फैट एंड 1 ग्राम ग्लूकोज की हम कंपेयर करें तो फैट प्रोड्यूसेस जस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सेल. इसका कारण ये है कि फैट इज present in more reduced form or less oxidized form. As compared to ग्लाइकोजन, कि ये ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में है फैट, या अपन कहें कि ये लेस ऑक्सीडाइज फॉर्म में है अगर हम उसको ग्लाइकोजन से कंपेयर करें. इसी कारण इट हैज़ मोर एनर्जी कंटेंट. अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है C6H12O6. जबकि अगर आप एक फैटी एसिड की बात करो, अगर वो मान लिया कि फैटी एसिड अगर C20 भी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है. लगभग जैसे मान लिया एक फैट मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम 4 या 5 या 6 ऑक्सीजन हो सकते हैं. जैसे मान लिया एक फैट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C50H110 एंड O4 या O5 ज़्यादा. ये कोई एक फैट मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. और अब जब ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि एनर्जी क्या देगा, ग्लूकोज ही एनर्जी देगा, पूरा ग्लाइकोजन थोड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन में जाएगा. ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा इनटू इंडिविजुअल ग्लूकोज यूनिट्स एंड दिस इंडिविजुअल ग्लूकोज अंडरगोस ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोड्यूस एटीपी. इस तरह से फैट को पहले तोड़ा जाएगा इनटू 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. पहले ग्लिसरॉल को फैटी एसिड से अलग कर दिया जाएगा तो इंडिविजुअल फैटी एसिड अलग हो जाएंगे, फिर वो इंडिविजुअल फैटी एसिड कहाँ जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर. पर उस फैटी एसिड के अंदर आप देखो कितना हाइड्रोजन कंटेंट है. तो हाइड्रोजन कंटेंट इज मोर इन केस ऑफ फैट मॉलिक्यूल और इन फैटी एसिड. सो ड्यू टू मोर हाइड्रोजन कंटेंट वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन मोर रिड्यूस्ड फॉर्म.
That is, gain of hydrogen is known as reduction. If it has, if a particular molecule has more hydrogen, it means it is present in more reduced form, because this particular hydrogen and the electrons related with it actually contains energy, the energy rich electrons, and less oxidized. अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ पर इसके कंपेरिजन में लेस है, तो वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. वाइल अगर आप हाइड्रोजन कंटेंट देखेंगे तो ये हाइड्रोजन कंटेंट इसका ज़्यादा है, इसका फैट का, तो इसको हम कह रहे हैं मोर रिड्यूस्ड. ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो लेस रिड्यूस्ड. अब यहाँ हाइड्रोजन कंटेंट कम है तो इट मीन्स इट हैज़ लो और एनर्जी, जबकि पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतने ही कम एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो इस कारण क्या है कि फैट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू ग्लूकोज. एक कारण तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि फैट के पास ज़्यादा एनर्जी है. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि चूँकि फैट्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, और जबकि ग्लाइकोजन से दे आर मोस्टली स्टोर्ड इन लिवर सेल्स. ठीक है, बट चूँकि ग्लाइकोजन का जो नेचर है वो पोलर नेचर है, और फैट्स का जो नेचर है टोटली वी कैन से इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ टोटली नॉन पोलर इन नेचर. सो इस कारण क्या है कि फैट पूरा कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है, जबकि ग्लूकोज के साथ साथ वाटर भी, ये ग्लूकोज क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और काफ़ी मात्रा में वाटर भी ग्लाइकोजन के साथ रहता है. तो ओवरऑल अगर इन टर्म्स ऑफ वेट की बात करें तो अगर हम बराबर वेट लें एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स या लीवर से अपन लें, और एक बराबर मात्रा में हम एक एडिपोज टिश्यू से हम फैट्स लेते हैं, तो देखते हैं कि कौन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो सेकंड मेन रीजन बिहाइंड दिस व्हाई फैट इज प्रेफर्ड ओवर glycogen is that fats are stored in anhydrous form. Fats are always stored in anhydrous form, while glycogen is always stored in hydrous form inside the cell. कहना मतलब ये है कि 1 ग्राम ग्लाइकोजन को 1 ग्राम ग्लाइकोजन requires 2 gram of water for its storage. मतलब अगर 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर रहता है तो इट नीड समथिंग अराउंड 2 ग्राम ऑफ वाटर H2O अब स्टोर होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जबकि फैट्स आर स्टोर्ड एज सच. उनको किसी भी वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती. तो अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ वेट कि टोटल अगर लिवर टिश्यूज से हम 3 ग्राम इन टर्म्स ऑफ वेट की बात करें, 3 ग्राम हम ग्लाइकोजन एक्सट्रैक्ट लेते हैं, हम देखना चाहेंगे इसमें कितनी एनर्जी है इस 3 ग्राम जो एक्सट्रैक्ट है. तो इस 3 ग्राम के अंदर 2 ग्राम तो हो गया वाटर और 1 ग्राम इज ओनली ग्लाइकोजन, एंड वाटर इज एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल. तो इसके पास एनर्जी ना के बराबर है, इट डजंट कंट्रीब्यूट इनटू एनर्जी. जबकि ग्लाइकोजन जब एनर्जी देगा तो कितनी देगा, 1 ग्राम है तो कितनी देगा, 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी दे रहा है. तो उस 3 ग्राम एक्सट्रैक्ट से कितनी कैलोरी मिल रही है, 4 कैलोरी एनर्जी मिल रही है इफ़ इट इज़ यूज्ड एज एनर्जी रिजर्व. पर जब हम फैट की बात करते हैं तो जो एडिपोज टिश्यूज से
हम 3 ग्राम एक्सट्रैक्ट अगर लें तो दैट 3 ग्राम कंटेन्स प्योरली 3 ग्राम ऑफ फैट, इट डजंट कंटेन एनी अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब ये 3 ग्राम का जब हम एनर्जी कंटेंट, जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी करेंगे, दैट इज 1 ग्राम अगर 9 कैलोरी के बराबर था तो 3 ग्राम देगा 9 इंटू 3 दैट इज 27 कैलोरी टोटल अमाउंट में देगा। यहाँ पे 4 कैलोरी मिल रही टोटल अमाउंट में इस 3 ग्राम कंटेंट से, इधर या 4 इस 3 ग्राम कंटेंट से 27। तो यू कैन सी द डिफरेंस। अगर इतनी एनर्जी के बराबर 27 कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए और उसके हिसाब से हमें ग्लाइकोजन स्टोर करना है तो हमारा वेट 6 गुना बढ़ जाएगा। इस कारण अगर हमारे पास फैट की जगह से हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर करें रिजर्व फूड को, तो जो भी बॉडी वेट है वो 6 गुना अधिक हो जाएगा। इसलिए हमेशा फैट्स को प्रेफर किया जाता है एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि इंस्टेंट सोर्स हमें हमेशा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को ही प्रेफर किया जाता है, बिकॉज उनको ईजिली डिसोशिएट किया जा सकता है और आसानी से ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। जबकि बीटा ऑक्सीडेशन एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसीजर, जहाँ पे कई सारी रिएक्शंस होती है तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि कई सारे टिश्यूज़ हैं जिनको खास करके कार्डियक टिश्यूज़ हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, ब्रेन्स, उनको रैपिड बहुत ही जल्दी उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी डिमांड्स उनकी हमेशा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फैट। हमने आज अभी देखा है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपना रोल प्ले करते हैं बायोमेम्ब्रेन्स के अंदर, हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द फ्लूइडिटी और रिजिडिटी टू द मेम्ब्रेन। वी हैड आल्सो स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फैट, दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, and we know that triacyl glycerol is mainly used as a energy resource, energy reserve inside the organism, and what is the main reason behind the use of triacyl glycerol, that is fat or oil की ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में इसे हम प्रायोरिटी देते हैं। उसका कारण हमने देखा कि एक तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होता है ड्यू टू because it is present in more reduced form, and further it can store easily in anhydrous form. इससे रिलेटेड कुछ 2-3 टॉपिक्स और हम स्टडी कर सकते हैं, फैट सेल से रिलेटेड ही हैं। बिकॉज ये जो टॉपिक्स हम जो स्टडी कर रहे हैं 2-3, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। This is what do you mean by saponification? Saponification. Saponification means when triacyl glycerol is hydrolyzed, can be easily hydrolyzed by using any alkali. In this case हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, तो क्या होगा, सैपोनिफिकेशन होगा। द प्रोसेस इज नॉन एज सैपोनिफिकेशन। ग्लिसरॉल रिमूव हो जाएगा और जो 3 जो फैटी एसिड है 3RCOONNA, सोडियम और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाएगा और ये 3 जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये अलग हो जाएगी ग्लिसरॉल से, और एक्चुअली इसे सोप कहते हैं। दूसरा एक टर्म आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स कि अगर लंबे समय तक फैट और ऑयल है, अगर वो एक्सपोज रहते हैं तो वो सड़ जाते हैं, डिटोरिएशन कहते हैं। खास करके व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, वाटर और ऑक्सीजन, it leads to oxidation of triacyl glycerol
and this oxidation of triacyl glycerol is actually called as rancidity. So जब भी commercial production होता है फैट और ऑयल का, so during commercial production of फैट और ऑयल, जो वनस्पति घी है या जो तेल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं कुछ अमाउंट में, ताकि इस चीज़ से या रेंसिडिटी से बचा जा सके. जैसे टोकोफेरॉल है, अल्फा नेप्थॉल है, ये शायद कोई एक फिनोलिक कंपाउंड है. सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स which actually prevents the rancidity of triacyl glycerol, and during the commercial production of these triacyl glycerol, these antioxidants are used. इस तरह से एक टर्म और आता है which is known as iodine number. एक चीज़ और मैं मिस कर गया था स्लाइडली, चूँकि हम जानते हैं कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उसका स्ट्रक्चर CH2 ये 3 एस्टर बॉन्ड होता है. अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी दो टाइप का हो सकता है. इट मे बी ऑफ टू टाइप. One is called as simple triacyl glycerol और simply triglyceride. इसको एक कॉमन नेम और है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, और ये कहते हैं मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसराइड. ट्राइएसाइल सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मीन्स ये ऐसा ग्लिसरॉल है जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जिसकी तीनों फैटी एसिड्स जो है वो सैचुरेटेड होगी. सो सिंपल TAG कंटेन्स ऑल, TAG के अंदर जो फैटी एसिड है दे ऑल आर ऑफ सैचुरेटेड टाइप, उनमें डबल बॉन्ड नहीं है. जबकि मिक्स TAG के अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होगा. पर वो किस तरीके से होता है कि कौन से मॉलिक्यूल में, जैसे मान लिया ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है. कार्बन नंबर 1 वाला हमेशा जो है R1 जिसको हम कह रहे हैं वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा. इस पे जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी फैटी एसिड की वो हमेशा सैचुरेटेड होगी. कार्बन नंबर 2 इस केस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जबकि कार्बन नंबर 3 से जो रिलेटेड फैटी एसिड है वह दोनों ही हो सकते हैं. वो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है. तो जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट मीन्स इट इज़ अ मिक्स्ड TAG, मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसराइड. इफ़ द फैट, फॉर एग्जांपल फैट जो है, तो फैट में ऑब्वियसली ज़्यादातर सिंपल फैट जो है जनरली सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, क्योंकि उनके अंदर मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड ही होता है. ऑयल हमेशा मिक्स्ड TAG होगा क्योंकि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. और सेंटर वाला जो C2 वाला जो कार्बन है उससे हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ रहता है. जबकि C1 वाला हमेशा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा. C3 वाला कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है. आयोडीन नंबर एक तरह की प्रॉपर्टी है और ये बताता है कि ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट है. सो इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स the relative amount of unsaturated fatty acid in triacyl glycerol. या इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन कंज्यूम्ड बाय 100 ग्राम ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का 100 ग्राम
जितना ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा, जितना कम आयोडीन कंज्यूम करेगा उतना ही कम आयोडीन नंबर होगा। और ये जो कंजप्शन है आयोडीन का बाय द ट्राइएसिलग्लिसरॉल, ये कुछ इस तरीके से है कि आयोडीन कंजप्शन is directly proportional to degree of unsaturation. सपोज मान लिया कि एक एक ट्राइएसिलग्लिसरॉल है जिसमें हमने कहा कि दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, और एक ट्राइएसिलग्लिसरॉल ऐसी है जिसके अंदर टोटल 10 डबल बॉन्ड्स है। तो आयोडीन नंबर किसका ज़्यादा होगा? आयोडीन नंबर इसका ज़्यादा होगा। इट विल कंज्यूम मोर आयोडीन। तो इसका मतलब यह है कि जिस ट्राइएसिलग्लिसरॉल का आयोडीन नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक है। जैसे हम कुछ ऑयल्स को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर iodine number, then we found that coconut oil iodine number is something around 10. ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का जो तेल है, उसका लगभग 100 के आसपास आयोडीन नंबर है। इज ए ह्यूज डिफरेंस। सनफ्लावर ऑयल कंटेन समथिंग अराउंड 130। लिंसेट ऑयल के पास और अधिक है, लगभग 200 उसका आयोडीन नंबर है। इट मीन्स सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन किसका है? इसका, लिंसेट ऑयल का। इट हैज मोस्ट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके ट्राइएसिलग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा प्यूफा है, और सबसे लीस्ट क्या कहाँ है? इसके अंदर। and maximum is in this case. So least to maximum. So groundnut oil has more unsaturated fatty acids as compared to coconut oil. Sunflower oil has further more unsaturated fatty acid, or we can say is more rich in unsaturated fatty acid PUFA as compared to groundnut oil. और कई सारे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि इस पे जब सफोला पे लिखा आता है कि इस पे इट इज़ PUFA रिच इन ऑयल सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स। तो इट एक्चुअली जितना ज़्यादा प्यूफा रिच ऑयल होगा उतना वो खास करके अपन कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के साथ साथ मतलब क्या, वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। अगर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो आर्थरोस्क्लेरोसिस टाइप की जो दिक्कतें हैं वो नहीं होगी, और लिंसेट ऑयल में और ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज आयोडीन नंबर। सो टुडे आई विल कंक्लूड माई क्लास with this last topic. So we had started a new topic, lipid structure and function, after completion of a very long discussion on carbohydrates. So lipids are molecules which are insoluble in nature, they are non-polar in nature, and different classes of lipids are found inside the organism. Fatty acid, the basic lipid is the basic unit which is found in all type of lipids. The major different classes of lipids which are found in living organism is fats, phospholipids and steroids. So today we had studied the structure of fatty acids, the functions, the types of unsaturated fatty acid like PUFA with some selected examples, some examples of saturated fatty acids, how saturated fatty acid contributes to membrane rigidity, and why unsaturated fatty acid contribute to membrane fluidity, and the composition of saturated and unsaturated fatty acid inside the phospholipid of biomembranes controls the membrane permeability. And then we had studied the structure of fat, that is triacylglycerol, and which is being used as a main energy reserve for the body, why it is being used, why it is preferred over glycogen,
the main reasons I had mentioned, that is the more reduced nature of fat and less reduced nature of the glycogen. Fats are stored in anhydrous form while glycogen is stored in hydrous form, and therefore fat produces more energy per gram as compared to glycogen. And finally some important terms like iodine number, saponification, rancidity. In the next class we will and that class would be the final class of our lipid topic, in which we will study about the membrane lipids, that is phospholipids and sphingolipids. These two are the major classes of membrane lipids, and we will I will provide a brief account on steroids as well. Thank you.